केला है, अब आप लाके भगवान को भोग धरा सकते हैं। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। साग विदुर गर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, सबरी के बैर सुदामा के तांदुल, सबरी के बैर सुदामा के तांदुल। मांग मांग हरि खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। राधा रानी के मन में बस गयो, राधा रानी के मन में बस गयो। औरन को हर्षायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन, जो मोरे श्याम को भोग लगावे, जो मोरे श्याम को भोग लगावे। छूट जाए लख चौरसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, सूर श्याम बलियाश चरण में, सूर श्याम बलियास चरण में। हृदय कमल में रहो बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. सभी लोग बोलिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Bhajaman Narayana Narayana Narayana, Bhajaman Narayana Narayana Narayana, Bhajaman Narayana Narayana Narayana, Bhajaman Narayana Narayana Narayana. Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Om Vishnupad Paramhams Parivajakacarya Stotra Shatashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगामयी जमुनामयी की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, उद्धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना श्री ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्णा गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज जो चर्चा का प्रसंग है, भगवान के लीलाओं का चर्चा करते हैं। और विशेष करके जब भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी है। भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया गया है कि भगवान क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात भगवान स्वयं मनुष्य जैसा रूप धारण करके और मनुष्य की मर्यादा कैसी होनी चाहिए भगवान इसका सीख देते हैं। क्यों ये सीख देना आवश्यक है? क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरा जनो। बताया गया है जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं, जाने माने लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज देखकर वही काम करता है। जो बड़े करते हैं वो साधारण लोग उनको पालन करते हैं। जैसे हाँ, इस पर मुझे याद आ गया कि दिवाली के समय, दिवाली जब लोग मनाते हैं तो दूसरे दिन
दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है। और जो गुजराती लोग होते हैं उनका ये सभ्यता है, लोक रीत है, ऐसे कोई ग्रंथों में प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रथा चला लिए हैं कि दिवाली के दूसरे दिन वो क्या करते हैं, वो वास्तविकता में मच्छी का दर्शन करते हैं, मछली का दर्शन करते हैं। और फिजी में क्या होता है कि ज़्यादा व्यापारी लोग गुजराती लोग ही है, पुंजज है, वे लोग सोचते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन मच्छी खाने से गुजराती लोग के तरह धनवान हो जाएंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठस, जो बड़े लोग करते हैं हम लोग उसको देखा देखी करते हैं। हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति अमुक पूजा करता है तो लोग उसको करने लगते हैं, लोग सोचते हैं अमुक करने से। शास्त्रों में बताया गया है कि ये धर्म जो है, ये भगवान के तत्व जो है, ये बहुत ही गुह्य बात है, ये रहस्य के बात है, ये सीक्रेट बात है। और ऐसा सीक्रेट है, राज विद्या राज गुह्यम, ये सीक्रेट ऐसा है कि सबके सामने उपस्थित होते हुए भी लोग नहीं जान पाते। जैसे कभी कभी होता है ना, लोग ऐसे फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो ऐसे सन की मटकी में बात कर देते हैं, दूसरे को पता नहीं चलता, इशारे इशारे में बात हो जाता है। ऐसे ये धर्म का तत्व है, ये सामने होते हुए भी सभी के पास रामायण है, सभी के पास गीता है, सभी के पास भागवत है, हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, ये सब एक्सपोजर होते हुए भी हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। कैसे भक्ति किया जाए इसको हम लोग जान नहीं पाते। ये ग्रंथ खुला होते हुए भी हम लोग नहीं पकड़ पाते। तो ग्रंथों में एक आचार्य जन समझाते हैं कि भगवान को समझने के लिए तर्को अपृष्ठा श्रुतियो विभिन्ना ना सब ऋषियान मतान भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायम महाजनो ये ना गतः सपंता। इसका मतलब होता है कि अगर कोई धर्म समझना चाहे, भगवान को पहचानना चाहे, भगवान को अपने पकड़ में लाना चाहे, तो बोला कि तर्को अपृष्ठा। तर्क के मतलब जानते हो ना, तर्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिबेट। तर्क मतलब डिबेट। तो हम लोग सब लोग साथ में बैठ जाए, फिर हम लोग डिबेट करें कि कौन भगवान है, कैसा भगवान है, कैसे भगवान को प्रूफ किया जाए। या कोई बोले कि ये तो हमारे पूर्वज में चलते आया है, ये हमारे कुल में चलते आया है। हम लोग डिबेट करें। डिबेट करने से कोई भगवान को नहीं जान पाएगा। तर्को अपृष्ठा, नहीं जान पाओगे भगवान को। डिबेट में तो हम लोग यही में लगे रह जाएंगे ना कि हमारे कुल में ऐसा चलते है, हमारे कुल का ये पूजा है। आप लोग ये श्लोक सुने कि नहीं? वासुदेव कुटुंबकम, सारा जगत जो है ये वासुदेव के कुटुंब है। सारा जगत जो है, आप बताइए परम ईश्वर भगवान कितने हैं? भगवान की गिनती कितना है? भगवान एक है। भगवान से देवी देवता सब आते हैं। जब हमने कल इसका वर्णन किया था, जब सृष्टि का उत्पादन हुआ तो भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी तपस्या करके जब उनको ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चला कि ये सृष्टि में सब जीवों को शरण देने के लिए, रिफॉर्मेशन करने के लिए, जो भगवान से भागे हुए हैं उनको सुधारपन करने के लिए ये सृष्टि का संचालन करना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्र कौन है ब्रह्मा जी के? 4 कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 कुमार हुए। जब 4 कुमार हुए तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो उन्होंने पिताजी से हाथ जोड़ के कहा, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज्ञा है कि ये संसार में प्रजा बढ़ाओ, मतलब जाओ और संतान उत्पन्न करो। तो ये छोटे छोटे बच्चे बोले ब्रह्मा जी को कि पिताजी हम तो ये नहीं करने वाले हैं,
हम तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही ठीक हैं और हम ये संसार के मोह माया में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अगर लड़का बाप के इसे जवाब दे दे कि ना हम नहीं करेगा, तुम्हारी बात नहीं मानता, सुने, तो पिता को क्या होगा? गुस्सा लगेगा ना, पिता को क्रोध आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब कोई व्यक्ति गुस्साता है, क्रोध आता है, उसका क्रोध जो है वो कहां पर एकाग्र होता है? माथे पे। आदमी जब गुस्सा है तो उसके चेहरा देखियो, माथा इसे सिकुड़ ले, मतलब गुस्सा हो गया। तो ऐसे ब्रह्मा जी क्रोध किए, तो ब्रह्मा जी का जो क्रोध है इतना तीव्र था। वैसे हम लोग के कभी कभी गुस्सा लग जाए ना, हम लोग के गुस्सा लग जाए तो हम लोग के कौन चीज है? हाथ चल जाए। ब्रह्मा जी के हाथ नहीं चला। इतना तीव्र गुस्सा हुआ ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी का क्रोध जो है वो यहां माथे से फट के बाहर निकल आया। और जब वो बाहर निकल आया तो एक संतान के, एक बच्चा का रूप धारण किया। और आप देखें ना, आदमी जब गुस्सा करता है, कभी कभी आदमी गुस्सा करता है और उस अपने गुस्सा को रोकना चाहता है तो उसको कैसे प्रदर्शन करता है? एक बहुत ज्यादा वाला गुस्सा वाला व्यक्ति क्या करता है? रोने लगता है। आपने अनुभव किया है कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा रहे, कुछ करे नहीं सको, तो गुस्सा के मारे आदमी रोए लगे। तो ऐसे ये जो गुस्सा जो ब्रह्मा जी का जो बाहर निकला, वो बच्चे का रूप लिया और वो केवल रोने लगा। तो वो बच्चा पूछता है ब्रह्मा जी से, मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी बोला कि क्योंकि तू रो रहा है केवल, इसीलिए तू रुद्र है। रुद्र कौन है? लॉर्ड शिवा, शिव जी का प्राकट्य इस प्रकार से हुआ। तो बोला कि मैं क्या करूं? तो बोला कि ब्रह्मा जी बोले कि ये सारे सृष्टि में प्रजा भर दो। तो शिव जी सब सृष्टि में प्रजा भरने लगे। और अभी अभी तो सृष्टि शुरुआत ही हुआ था कि इतना प्रजा भर दिया सृष्टि में कि सृष्टि का प्रलय होने लगा। तो ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, ऐसे नहीं चलेगा, अभी तो बनना ही है कि ये तो बर्बाद होने लगा है। तुम जाओ कैलाश पर बैठो और भगवान का स्मरण करो। तो बोले किसका स्मरण करो? तो बोले कृष्ण का स्मरण करो, जिसका विस्तार बलराम जी है, जिसका विस्तार संकर्षण है। तो क्योंकि शिव जी संकर्षण पर ध्यान करते हैं, इसीलिए शिव जी विख्यात है, उनको बोला जाता है शंकर। शंकर बोला जाता है। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं शिव जी को शंकर भगवान। भगवान मतलब जिसका भाग्य सबसे बड़ा हो, जिसका ध्यान भगवान में लगा है, वो भाग्यवान है कि नहीं है? इसीलिए ग्रंथों में कभी कभी नारद जी को भगवान बोला जाता है, भगवान नारद, या व्यास देव जी को बोला जाता है भगवान व्यास। कभी कभी भक्तों को भी भगवान बोला जाता है, मतलब कि भाग्यवान है। जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान है। रामायण में शिव जी कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्यागी विषय अनुरागी। बोले सुनो उमा, हे उमा सुनो। बोले कभी कभी हम लोग सोचता है कि कोई गरीब है, कोई बदसूरत है, कोई के लगे धन नहीं है, कोई के सौंदर्य नहीं है, कोई के बल नहीं है, शक्तिहीन है, तो हम लोग सोचता है बहुत ही अभागा है, इसके कोई भाग्य नहीं है, इसके कोई गुड फॉर्च्यून नहीं है। शिव जी बोले हे पार्वती सुनो, किसके मिसफॉर्च्यून बोला जाए? सुनो उमा ते लोग अभागी। बोले हे उमा सुनो, वो लोग अभागी है जो हरि त्यागी, जो भगवान को छोड़ दिया है, और विषय अनुरागी। विषय शब्द आता है विष से, विष मतलब जहर। जैसे मेरा नाम है विश्वनाथ, विश्वनाथ शिव जी का नाम है। शिव जी बड़े आशुतोष है, शिव जी बड़े खुश हो जाते हैं और शिव जी ऐसे ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं टैक्स ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरा काम बहुत सीधा सीधा था। जो टेढ़े लोग आते थे तो वो मुझको बोलते थे तू पूरा जहर है, क्योंकि मैं बैंड नहीं था, विष। मुझे शॉर्ट में लोग को विष बोलते थे।
एकदम सत्य बात जो है वो कड़वा होता है ना, सच्चाई पर लोग नहीं पालन करना चाहते हैं। तो बोला कि जो विषय अनुरागी, जो विषयों में, संसार के विषयों में, संसार के विष मतलब जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, विष मतलब वो कार्य जिससे भगवान छूट जाए, जिससे भगवान छूट जाए। मैं इसका डिटेल नहीं बोलूंगा, आप खुद अपने सोच सकते हो कि कौन कौन से काम करते हो तब आप भगवान के पास नहीं आ सकते हो। बस उतना में ही समझ जाओ कि क्या विषय है, क्या शिव जी बोल रहे हैं। विषय अनुरागी, जो काम से भगवान छूट जाए वो काम विषय है। हरि त्यागी, जो भगवान को छोड़ दे और विषय में लग जाए, ऐसे लोग अभागी है, इसके दुर्भाग्य बोला जाए। जिसके लगे पैसा नहीं है उसके कंगाल नहीं बोला जाए, कंगाल तो उसके बोला जाए कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकतिया छे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। जो भगवान का नाम नहीं बोलता है, जो कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, जो राम राम नहीं बोलता है, ऐसा व्यक्ति कंगाल है, ऐसा व्यक्ति कंगाल है। क्यों कंगाल है? जब आपके पास पैसा होता है तब आप संसार की चीज खरीद सकते हो कि नहीं? जिसके लगे पैसा है वो कुछ भी सके खरीद ले। जिसके लगे हरिनाम संकीर्तन गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, जिसके लगे वैकुंठ के करेंसी नहीं होए, ऐसा व्यक्ति के कंगाल बोला जाए। क्योंकि मरे के पश्चात वैकुंठ के यात्रा के विमान के टिकट कैसे खरीदियो जब राम के नाम ही नहीं है हम लोग के जीवन में। जीवन में राम नाम के कमाई करे पड़ी। तभी कोई संत बहुत सुंदर भजन लिखा है, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचावे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ये साधु लोग के काम है, गली गली जाओ, गली गली जाओ। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन शुरुआत किया है। भक्त मृदंग करताल प्रसाद लेके गली गली में जाते हैं, घर घर पे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु बोले, नित्यानंद हरिदास प्रभु को बोले कि घर घर जाओ, प्रति घरे घरे गया, कोई घर छोड़ो नहीं, सब घर पे जाके नॉक करो। और बोले जाके भीख मांगो। भीख मांगो मतलब 25 सेंट नहीं चाहिए। क्या मांगो? सीधा नहीं चाहिए, आलू प्याज नहीं चाहिए, चकपत्ती नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण को भजो, याद करो, भा से भजो भगवान, जा से जपो हरि नाम, और करो कृष्ण शिक्षा। भगवत गीता पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, इसका शिक्षण करो। है? तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पादन किया, शिव जी को बोला कि अब ध्यान में बैठ जाओ, तो फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने अलग संतानों को उत्पन्न किया। जो अंग से निकला उसको अंगिरा ऋषि, जो मन से निकला, सब ऐसे ऐसे संतान उत्पन्न किए। फिर मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और मनु और शतरूपा से बोला कि अब मनुष्य का प्रजा करो। तो मनु और शतरूपा से, मनु महाराज से सब मनुष्य आते हैं। तो यहां मनुष्य आके अब हम लोग कारे गोले गुजराती हिंदुस्तानी मद्रासी ये सब गोरे सब हो गए हैं। आए तो सब मनु शतरूपा से। हम लोग मनु शतरूपा बोलते हैं, बाइबल में एडम एंड ईव बोलते हैं, और कुरान में भी ऐसा कुछ बोलता है, आदम और कोई कुछ बोलता है, वो मनु शतरूपा ही है।
हम लोग सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही भगवान से आए हैं, केवल भगवान को अलग अलग नाम दे दिए हैं। पानी वस्तु एक है, हिंदुस्तानी उसको पानी बोलता है, कविती उसको वाई बोलता है, अंग्रेजी में उसको वाटर बोलते हैं। वस्तु नहीं बदलता है, वस्तु नहीं बदलता है। ऐसे भगवान एक ही है, हम लोग सब भगवान से ही आए हैं, हमारे सबके माता पिता एक ही भगवान है, तो फिर हमारा कुल कैसे अलग अलग हो गया? ये कुल की बात जो है, ये तो संसार के भ्रम है, ये संसार के भ्रम है। सब हिंदुस्तानी ही है। जैसे हम लोग सूबा में है तो हम लोग सूबा के हिंदुस्तानी है, हम लोग लंबासा में है, थोड़ा आवा जावा बोले लगा तो हम लोग लंबसिया हो गया, लेकिन है तो हिंदुस्तानी, है तो सनातन धर्मी, है तो भारतीय, लेकिन खाली जगह के प्रभाव से हम लोग अलग अलग बन गया है। ऐसे हम लोग सब भगवान के लड़कन है, हम लोग के एक कुल है, एक कुल धर्म है हम लोग के, एक कुल धर्म है। क्या धर्म है हम लोग के? वासुदेवे भगवती भक्तिर उत्तम। हम लोग के सबके काम है वासुदेव के भक्ति करो। फिर भी हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, जब कहीं पे कोई मर्गी हो जाता है, जब मोक्ष वैकुंठ की प्राप्ति करने की इच्छा होती है, कहीं पर बताओ आप भगवत गीता अर्थात श्री कृष्ण के वाणी के अलावा कोई और ग्रंथ किया जाता है? कहीं होता है 13 रोज के वास्ते रामनवमी बैठा दो, राम कथा बैठा दो। कोई जगह होता है कि 13 रोज के वास्ते देवी भागवत बैठा दो। कोई जगह होता है 13 रोज एकदम कथा शुरू कर दो हम लोग। कोई जगह होता है कि हम लोग 13 रोज आगी पुतरे लगो। कोई पूजा नहीं कर सकते हम लोग, शूतक हो जाता है, सिवाय एक मुकुंद कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। खाली कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ तब सको चलते रहे, नहीं तो संसार में फंस जाएंगे हम लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जो अलग अलग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हम लोग सब अलग अलग हैं, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। किसी को चटक पसंद है, किसी को सादा पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, ठीक है, अपना अपना पसंद है, लेकिन अंतिम यात्रा तो सबका एक ही होगा। सब लोग कहीं भी जाए मांगो, लास्ट में तो ररलेबू जाए पड़ी। यही रकम है कि लास्ट में सबके कृष्ण शरण में आए के पड़ी, तो काहे नहीं उस शरण अभी ले लो। इसका मतलब नहीं है रलेबूजा का भी बैठ जाओ। ये भक्ति अलग है। भक्ति सब लोग कृष्ण को करेंगे तो अंतिम घड़ी में अगर कोई सहारा भी नहीं है तो कृष्ण उसके लिए खड़े रहेंगे। इसीलिए आचार्य लोग समझाते हैं, आप देखिए सभी भगवान जब भगवान खड़े होते हैं, चाहे कोई बैठा है, चाहे कोई आसन, राम जी खड़े भी होते हैं तो सीधे खड़े हैं। हनुमान जी को देखो तो वो बैठा हुआ है हाथ जोड़कर। आचार्य समझाते हैं कृष्ण को देखो तो कृष्ण दौड़ने के मुद्रा में खड़ा है, केवल हमको पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले एक बार केवल पुकारना है, भगवान दौड़े चले आएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में भोजन कर रहे थे, भोजन करने के लिए बैठे, ऐसे रुक्मिणी जी ने उनको भोजन परोसा तो भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। तो रुक्मिणी बोली कि अरे प्रभु, मैं आपको भोजन परोसे, आप कहाँ जा रहे हो उठ के? तो ऐसे ही जैसे रुक्मिणी बोली तो भगवान फिर बैठ गए। तो रुक्मिणी बोली प्रभु क्या हुआ, आप जा रहे थे आप बैठ गए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरा एक भक्त था, एक ब्राह्मण ऐसे गली से जा रहा था और एक कुत्ते ने उसको दौड़ा लिया। तो भगवान के वचन है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं, प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तू ऐलान कर दे कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। तो भगवान ब्राह्मण था तो भगवान के भक्त था, भगवान देखा उसके कुत्ते अटैक किया तो भगवान तुरंत खड़े हो गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी बोले तो प्रभु आप गए नहीं, क्यों बैठ गए? तो बोले भगवान बोले कि वो ब्राह्मण जो था, अब वो अपने हाथ में पत्थर उठा लिया कुत्ते को मारने के लिए। पहले ब्राह्मण को रक्षा करना था, अब तो 2 कुत्ते लड़ रहे हैं।
जैसे ही भगवान पे शरणागति हमारा उठ जाएगा, फिर भगवान आपको माया जी के गोद में छोड़ देते हैं, दुर्गा जी के गोद में छोड़ देते हैं। दुर्गा जी कौन है? दैवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि शिव जी और दुर्गा जी जो है ये संसार के माता पिता है। ये सब जीवों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित मतलब रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। कर्म अनुसार जैसा जैसा हमारा जन्म होगा, कर्म अनुसार जो हमारा भाग्य होगा, जितना भाग में कर्म अनुसार कमाई लिखा है, धन लिखा है, सुख सुविधा लिखा है, वो कर्म अनुसार आता है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं इससे सुख नहीं आता है, इससे तो सुख आगे आएगा भविष्य में। अभी जो हम लोग सुखी है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे अमुक व्यक्ति तो बड़ा पापी है लेकिन बड़ा सुख से जीवन जी रहा है। अरे उसके पूर्व जन्म के कमाई है तो आज सुखी है, लेकिन मूर्ख अपना पुण्य बर्बाद कर रहा है, इस जन्म के बाद में वो नरक भोगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सब एक ही भगवान से आए हैं, फिर हम लोग अपना अपना कुल धर्म कैसे बना लिया। तर्को अपृष्टा, तो हम लोग ऐसे तर्क करके कि हम लोग के कुल में ऐसे चलते या ऐसे, ये बात नहीं चली है। ये हम लोग केवल लोका रीति पकड़ लिया, ऐसे 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 हम लोग पकड़ लिया। एक समाज में रहता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करे लगाए। श्रुतियों विभिन्ना, बोले अगर हम लोग सब वेद शास्त्र भी पढ़ लो तभी हम लोग भगवान के नहीं जान पाइयो। काहे कि वेद शास्त्र अलग अलग पढ़ के, कोई शिव पुराण पढ़े है तो बोले ये बड़ा है, कोई देवी भागवत पढ़े है बोले ये बड़ा है, कोई दूसरा लिंग पुराण पढ़े है, कोई ये पढ़े कोई वह पढ़े, तो सब अलग अलग। और आजकल तो लोग ग्रंथ पढ़े ही नहीं, कोई व्यक्ति थोड़ा से चमत्कार कर दे, आदमी बोले भगवान है। अगर केवल चमत्कार करना भगवान है तो त्रेता युग में तो रावण तो साधु के भेष बनाए के आइस रहा, तब तो रावण भगवान है। चलो रावण खाली साधु के भेष बनाइस रहा, मारीची तो राक्षस रहा, सोने के हिरण बन गए, तो हम लोग तो उसके पूजा ला जगह रख के पूजा करे लगेगा। कोई इंसान नहीं सके भगवान बने। चमत्कार करना ये भगवान के क्वालिफिकेशन नहीं है। चमत्कार तो जादूगर भी करे है? अगर चमत्कार ही करे के है, चमत्कार करे के है, प्रभुपाद जी बोले दुनिया भर में आदमी सब भूखा मरा जाए है, उलोंग के भभूत देवे से कहां भूख उलोंग के जाई है। भगवान है तो भोजन दे दो भाई, ये जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मनुष्यों को भगवान मान बैठते हैं। भगवान का कभी निधन नहीं होता है। ऐसे नहीं हुआ कि राम जी मर गए या कृष्ण मर गए। कितने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। साधु संत भक्ति करने से क्या होता है? चमत्कार करने का शक्ति आ जाता है। चमत्कार करने की शक्ति आने से, चमत्कार की शक्ति जब आता भी है, वो भी भगवान भक्त का परीक्षा कर रहा है कि अब तुम्हारे पास चमत्कार करने की शक्ति है, मैं आपके मन के बात पढ़ सकता हूं, तो भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है कि क्या तू दूसरे के मन में फंस जाएगा कि ये शक्ति प्राप्त करके भी तेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तेरे को तो मेरे प्रेम में इंटरेस्ट है। तो श्रुतियों विभिन्ना, अलग अलग ग्रंथ आदि पढ़ के भी भगवान के नहीं जान पे हो। ना सब ऋषियान मतान भिन्नम, बोले सब ऋषि लोगों के वोटिंग कराए दो। तब एक कलयुग में विशेष करके हम लोग देखता है, कलयुग में डेमोक्रेसी नहीं चली। आधा आदमी तो पागल है, तो जब पागल आदमी वोट करी तो सब पागल लोग क्या करी? पगले तो वोट करी। तो बोलियो कि अगर मेजोरिटी से धर्म जान जाइयो, नहीं जान पाइयो है। धर्म 100% सतयुग में रहा, त्रेता में 75 हो गए, द्वापर में 50 हो गए, कलयुग में 25 हो गए। अगर मेजोरिटी के फॉलो करियो तो यू विल ऑलवेज बी अ फेलियर। तब ऐसे नहीं सको बोले कि जहां पे बड़ा गैदरिंग है वहीं पे भगवान है।
भगवान बोले हम कहाँ हैं? मग भक्त गायंती, जहां भगवान के प्रेम भक्ति होए है, जहां पे व्रज के भक्ति होए है, गोपियों का भाव में भक्ति होए है, जहां पे मद भक्त गायंती, जहां पे संकीर्तन होए है, भगवान बोले वहां उपस्थित रहता है। तो तब धर्म कैसे सीखियो? तो बोले कि ना सव ऋषिया न मता न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायम महाजनो ये न गताहा सपंता। बोले धर्म के महाजन होए हैं, धर्म के महाजन लोगों से सीखो कि धर्म क्या है। धर्म के महाजन कौन है? बोले स्वयंभू, शंभु, नारदा और कुमार, कपिल, मनु और प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, वयसखीर, वयम। ये 12 धर्म के महाजन है। आप हम लोग के पूरा ग्रंथ देखो, सब ग्रंथ में क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, स्वयंभू जो अपने से पैदा भय। कौन अपने से पैदा भय है? ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान के नाभि से कमल पुष्प निकला, उस पे ब्रह्मा जी के जन्म है। स्वयंभू। तो बोले हम लोग के देखे पड़ी कि स्वयंभू कौन सी बोले? स्वयंभू बोले हैं ब्रह्मा जी सबसे पहला रचित व्यक्ति है। ब्रह्मा जी बोले ईश्वरः परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी जो सबसे पहला व्यक्ति भय है संसार में, वो बोले हैं कि हम देखा भगवान कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्णा। हम लोग कैसे देखे पड़ी? ये उदाहरण मेरे मन में आ गया। जैसे अभी हम लोग यहां अंदर बैठा है, ठीक है, अभी हम लोग यहां अंदर बैठा है, अभी आप लोग सब ऊपर देखो। ऊपर देखता है हम लोग के क्या दिखाए? हैं? सीलिंग दिखाए, बत्ती दिखाए, कोई के आकाश दिखाए? कहा है? हम लोग ऊपर से देखता है हम लोग सीमित है। लेकिन अगर अभी लंबा सा या नेंडी से प्लेन आई अभी 8-9 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अगर प्लेन में से जब नीचे देखियो, दिन में अगर आ जाए, मानो दिन में से जब देखियो और ये रूफ निकला रही, तो ऊपर से सको देखे कि नहीं? ये मंदिर सको देखे, रूफ निकला रही, तो इसमें ये कमरा है, उधर पोच है, वो भी दिखाई, ये सब दिखाई हम लोग के। जब ऊपर से हम लोग देखेगा, हम लोग के तकलीफ ई है, हम लोग के खामी ई है, हम लोग के सीमा ई है कि हम लोग सब कुछ आपन बगल से देखता है। तबे हम लोग संसार जब देखता है तो हम लोग के पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? गायत्री मंत्र में बोला जाना है ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर भूर भुवः स्वः। फिर ऐसे एक एक लोग ऊपर जाए, स्वर्ग जाए, स्वर्ग में भी जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मलोक से ऊपर महेश धाम, महेश धाम से ऊपर बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर अयोध्या, अयोध्या से ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है? जैसे घर के प्लेन बनाओ, घर के प्लेन बनाओ तो साइड एलिवेशन रहे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आगे पीछे के एलिवेशन रहे। लेकिन फिर जो फोमन रहे, जो कारपेंटर है, कॉन्ट्रैक्टर रहे, वो मांगे उसके डायसेक्शन देखे तो डायसेक्शन प्लेन भी रहे उसके, कि जब ऊपर से देखियो तो कौन रूम कहाँ है, कहाँ टॉयलेट, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन है? तो यही रकम से ब्रह्मा जी बता है कि हम ऊपर से देखता है, हम सबसे ऊपर है तो हम सबसे ऊपर से देखता है कि हमसे नीचे सब देवी देवता है और ये मृत्यु लोक है और पाताल है, नरक है, और हमसे ऊपर केवल भगवान है। तबे ब्रह्मा जी बोले ईश्वर परम कृष्णा। ब्रह्मा जी देख के बोले, फिर बोले स्वयंभू शंभु। शंभु कौन है? शिव जी है। शिव जी बोले, शिव जी बोले रामायण के अंत में, जब पूरा रामायण लिखाई गया है, जब अंत में कंक्लूजन आई से, तो कंक्लूजन में तुलसीदास जी लिखे, बोले शिव जी बोले सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। ऐसे रहता तो शिव जी बोलता सब साधन का फले भवानी, मम पद भक्ति सो वेद बखानी। शिव जी बोले हमा भक्ति नहीं, हरि पद भक्ति। हरि कौन है? श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि मतलब जो सबके दुख हर ले, जो जन्म मृत्यु हम लोग के हर ले, जो हम लोग के अपन शाश्वत धाम दे सके, उसके हरि बोला जाए। तो शिव जी बोले हैं कि हरि के पद भक्ति प्रेम करना है तो श्री हरि के कमल चरणों का करना है। स्वयंभू शंभु नारद, नारद जी है धर्म के। सबको ही सोचे नारद जी इधर के बात उधर करे, इधर के बात उधर नहीं करे, वो राइट बात उधर करे है कि तुम लोग सब मोह माया में फंस गया है। राइट चीज है कि भगवान के नारद पंचरात्रि की विधि में बताया है नारद जी कैसे भगवान के भोग धराया जाए, कैसे भगवान की आरती करा जाए, कैसे भगवान के श्रृंगार करा जाए, भगवान के छवि कैसे है, ये सब नारद जी बताए। स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु, 4 कुमार बताए हैं धर्म क्या है। 4 कुमार बताए धर्म क्या है। 4 कुमार जब उनके जन्म भय रहा तो वो लोग ब्रह्मवादी थे, वो लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे। तब 4 कुमार भगवान के खोज में वैकुंठ पहुंच गए। जब वैकुंठ पहुंच गए तो वैकुंठ के द्वार पे जय और विजय रहा। तो जय और विजय वैकुंठ के द्वार पे 4 कुमार के रोक दिस। 4 कुमार के रोक दिस, बोले तुम लोग नहीं सकता है वैकुंठ के अंदर आवे, काहे कि तुम लोग तो मानता है कि भगवान निराकार ब्रह्म है। बोले भगवान निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान के साक्षात स्वरूप है, भगवान के आदान प्रदान होए है। आप सबको भगवान की सेवा करे, भगवान आपके आलिंगन करी। ऐसे राम के लीला हम लोग देखते हैं कैसे भरत जी को मिलते हैं, या हनुमान चालीसा में कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, जैसे भरत है वैसे तुम हो। मतलब भगवान हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। अगर भगवान निराकार है, भगवान खाली ब्रह्म ज्योति है, तो कैसे भगवान आलिंगन करी। बाइबल बोलता है मेन आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम लोग भगवान के परछाई में बना है। अगर भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, तो हम लोग के भी तो सब 32 रकम बरेक चाहिए। तो हम लोग तो आकार है, हम लोग के तो हाथ मुंह नाक कान है। काय हम लोग के हाथ मुंह नाक कान है? बिकॉज भगवान के ऐसा स्वरूप है। कृष्ण के देखो 2 हाथ वाला गोविंद स्वरूप भगवान के, लेकिन हम लोग केवल परछाई में बनाए। जैसे आप अपन आपके शीशा में जब देखेगा तो राइट हैंड लेफ्ट दिखाई और लेफ्ट हैंड राइट दिखाई, उल्टा दिखाई ना। तो हम लोग भगवान के परछाई में बना है, काहे कि हम लोग संसार में बना है तो हम लोग केवल विपरीत है, हम लोग भगवान के विरोध में है। अगर हम लोग अपन परछाई सुधार लो, भगवान से पुनः प्रेम करे लगो, तो हम लोग फिर अपन दिव्य रूप में आ जाएगा, वास्तविक स्वरूप, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम लोग आ जाएगा। हम और आपके पंच धातु के शरीर नहीं है। हम लोग के शरीर मांगे सच्चिदानंद रहे, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। हम लोग वैकुंठ के वासी है, लेकिन हम लोग संसार में आके तो बोला कि जो महाजन लोग से धर्म सीखा जाए, हनुमान जी जैसे धर्म के महाजन, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी दिखाए कि राम जी के सेवा करो, शिव जी दिखाए हनुमान जी के रूप लेके वो राम के सेवा करे। स्वयंभू शंभु नारद और जनक महाराज के उदाहरण दिया गया। रामायण में वर्णन है ना, जब भरत गे रहा भगवान श्री रामचंद्र जी के लेके आवे, तो भगवान नहीं माने नहीं माने नहीं माने। तो जनक जी बताए इस भरत के, बोले भरत भगवान के बोलो नहीं कि तुम चलो, तुम भगवान के नहीं बॉस राउंड करो कि तुम चलो ना अयोध्या चलो। कभी कभी हम लोग गुरु मांगता है तो हम लोग मानता गुरु हम लोग के पेट के माफी दो। हम लोग जैसे बोले गुरु हमें देख के हंसो, गुरु अपन हाथ रख दो हमारे मूड पे, गुरु अब हम मनता तुम्हारा चरण धोए तो गोड़ आगे करो। गुरु की सेवा करे रहे तो गुरु के पूछो। जनक महाराज बोले भरत के, जाओ राम से पूछो कि तुम कौन सी मांगता है। तो राम बोले हम तो मांगता है पिता के वचन पूरा करें। तबे से कल हम लोग बोला रहा कि भगवान शास्त्र के रूप में प्रकट हुए है। भगवान की भक्ति क्या है, भगवान की सेवा पूजा क्या है, ये भगवान से पूछे पड़ी। तो ग्रंथ में भगवान बोले कि हम कौन सी मांगता है, तो हम लोग वैसे सबको सीखे। तो जनक महाराज है, मनु महाराज है, तो ऐसे धर्म के 12 महाराज है। यमराज भी भगवान के महाजन है, धर्म के महाजन है।
भागवत पुराण के 6वां स्कंद में बताया गया है, यमराज यमदूत के बोले हैं वो व्यक्ति को नरक लेके आओ जिसके जिह्वा से भगवान के नाम नहीं निकलता है। कभी आप लोग देखा ना, कीर्तन करो, आदमी बोल भी नहीं करी, आदमी बोलो कि राम के नाम लो, बोले हम बोल लेगा, कौन सी बोलेगा, हम बोल लेगा, लेकिन राम नहीं बोली। हाँ? तो यमदूत लोग के यमराज बताए, बोले वो व्यक्ति के नरक लेके आओ जो एकादशी नहीं करे है, वो व्यक्ति के नरक लेके आओ जो भगवान के नाम नहीं लेवे है, बोले वो जिसके आंख से भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, वो व्यक्ति के नरक लेके आओ जिसके कान भगवान के हरि कथा नहीं सुने, वो व्यक्ति के नरक लेके आओ जिसके मुंह से आदमी प्रसाद नहीं खाए, जिसके जिह्वा से प्रसाद के आस्वादन नहीं करे। तो ये धर्म के महाजन लोगन है, लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम क्यों भगवान श्री कृष्ण है? क्योंकि लीला पुरुषोत्तम मतलब भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देते हैं। सब लोग जानते हैं भगवान क्यों प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग के बड़प्पन होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान आगे क्या बोलते हैं, मैं किसके लिए प्रकट होता हूं? परित्रणाय साधु। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आते, कंस को मारने के लिए नहीं आते, वो तो आते हैं परित्रणाय साधुनाम, भक्तों के रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान के मेन कारण है भक्तों के रक्षा, और भक्तों के रक्षा में असुर वो फिजिकेया हेल्थ प्लस इसके तरह नहीं है कि एग्जॉस्टिंग लिस्ट चेक करना पड़ेगा कि अब तुम्हारा इंश्योरेंस खलास हो गया इस साल के, अब नहीं सके और दवाई मिले। ये इटर्नल इंश्योरेंस है। जो भगवान के भक्त बन गया वो भगवान के संरक्षण में हो गया। देख सकते हैं हम लोग किसका उदाहरण, द्रौपदी का। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, दुशासन उनके कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था, द्रौपदी कोशिश करते रही अपने आप को बचाने के, कृष्ण रक्षा नहीं किया ना। वो अपने साड़ी का एक कोना जो था अपने दांत में दबाई थी, वो सोची कि मैं अपने आप को बचा सकती हूं। लेकिन जब दुशासन जोर से खींचा और उसके दांत से साड़ी निकल गया, दुशासन खिंचते 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 एकदम नॉकआउट है। दुशासन के हाथ सब मसल सब पेन करने लगा। कृष्ण बोले हम अपन भक्त के, कभी कभी भगवान एकदम एज पे ले जाए के, एकदम एज पे ले जाए भगवान, उससे भगवान से प्रेम बढ़ जाए। लेकिन अपन भगवान भक्त के कभी लेट डाउन नहीं करे। सुदामा के भी भगवान कितना, हर रोज सुदामा के लाइफ में एकादशी होए लगा रहा, लेकिन भगवान जब पौवा खाई सुदामा के, सुदामा लौट के आईस तो पहचान नहीं पाईस, अपन ओन पत्नी के नहीं पहचान पाईस, बच्चा लोग के नहीं पहचान पाईस। कहा कि भगवान जब दिस तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लिस, बोले दुई कौर में तो सब कुछ दे दिया है, तीसरा में हमें दासी बनाए दे का सुदामा के। भगवान अपन भक्त के कभी व्यर्थ नहीं जानते। हाँ? तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण आवे है भक्त लोग के आनंद दे के वास्ते। तो भगवान कैसे आनंद दे है? एक लीला है भगवान के, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तो अपने सब ग्वाल बाल सखालों के साथ में रोज जाते हैं गौवा बछड़े चराने के लिए। उस समय भगवान उतने बड़े नहीं थे कि गैया चराए, तो पहले नंद महाराज उनको दिया बछड़ों को चराने के लिए। तो ये सब बछड़ा लेकर जाते हैं रोज, और ये सब छोटे छोटे बच्चे बछड़ा लेकर जाते हैं तो जंगल में खूब पिकनिक करते हैं, जमुना के तट पर बैठकर। और फिर क्या करते हैं, उन सब बच्चों की माताएं जो थी उनको पार्सल बना के देती है लंच टाइम खाने के लिए। जो बूढ़े लोग हैं वो लोग जानते होंगे, पहले अभी के टाइम ऐसे कंटेनर नहीं था, रूप्स वाला प्लास्टिक वाला है, ऐसे रुमाल जैसे वाइट कपड़ा रहे ना, उसमें रोटी रखो, तरकारी रखो और फिर उसके गांठ बांधो ना। माता बूढ़ी माता जी लोग जानते होंगे, ऐसे गए ज़माने में ऐसे होता था। है? तो सब बच्चा लोग ऐसे ऐसे अपन अपन पार्सल लेके आए। तो कोई लड्डू लेके आए, कोई समोसा लेके आए, कोई मालपूरा लेके आए। हैं? तो फिर सब लड़का लोग ऐसे बैठे, बाल सखा लोग बैठे और सबके अपन अपन पार्सल खोले।
तो कोई लड़का लड्डू लाइक करे तो उसके लड्डू मांगे, कोई ये मांगे। तो भगवान के बाल सखा है, मधुमंगल है, कृष्ण जी स्वयं है, बलराम है, फिर मधुमंगल है, फिर सुबाल है, ऐसे सब भगवान के दाम गोप है, सब ऐसे अलग अलग बाल सखा लोग बैठे और फिर शेयर करे, सबको शेयर करे। तो एक दिन ऐसे लोग बैठ के पिकनिक करता रहा। तो कृष्ण के एक सखा था श्रीधाम, वो अपने घर से लड्डू लेकर आया। तो कृष्ण के एक मित्र था, ब्राह्मण मित्र था, उसका नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल जो है उसको लड्डू बहुत पसंद था। तो जैसे वो श्रीधाम के लड्डू देखा, वो तुरंत श्रीधाम के लड्डू पे झपट्टा मारा और हाथ में ले लिया और कृष्ण को दिखाया कि यार मुझे लड्डू मिल गया। तो कृष्ण भी लड्डू चाहते हैं, तो कृष्ण क्या किया, वो मधुमंगल के ऊपर झपट्टा मारा और इससे पहले कि वो लड्डू पकड़ पाए, मधुमंगल ने लड्डू मुंह में रख लिया। उन्होंने मुंह में लड्डू रख लिया तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, उसका मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ लिया, अब मधुमंगल लड्डू निगल नहीं सकता है। अब लड्डू आधा अंदर है आधा बाहर है। तो कृष्ण क्या किया, उसके मुख से लड्डू निकाल के और खा लिया। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान ये दूसरे लड़का के जुट्ठा लड्डू खा गया, नहीं ये नहीं हो सकता है कि कृष्ण भगवान है। तो बोले मुझे भगवान का परीक्षा लेना पड़ेगा। कैसे परीक्षा लेगा, बोले मैं सब ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लेता हूं और एक गुफा में इनको छिपा देता हूं। अगर ये भगवान होगा तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, नहीं तो देखेंगे क्या करता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनको चुरा के और ले गए गुफा में। गुफा में ले गए और लौट के आए देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहा है। जब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो ब्रह्मा जी गए और आए, इसमें 1 साल समय निकल गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी लेकर गए, कृष्ण देखे कोई ग्वाल बाल नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है। तो भगवान बोले अब क्या होगा। भगवान को पता है ब्रह्मा जी ले गए, लेकिन भगवान ऐसे लीला करते हैं। भगवान बोले अब क्या होगा, अभी शाम को मैं घर जाऊंगा, सब गैया अपने अपने बछड़ा चाहेंगी, सब गोप लोग अपना अपना बच्चा चाहेंगे, मैया लोग अपने गोपियां लोग अपने अपने बच्चा चाहेंगे। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि सब जंगल में किसी ने चुरा लिया, सब हेरा गए। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने अपने आप से सब बछड़े और सब ग्वाल बाल उत्पन्न कर दिए, अपने आप से निकाले, मतलब सब कृष्ण थे। तो सब वापस गए, 6 बजे का टाइम हुआ, सब वापस गए। जब सब लोग वापस गए तो सबको अपने अपने बच्चों पर बहुत प्यार आने लगा। जो गैया है वो अपने बछड़े को देखती है, बछड़े को देखते ही उनके स्तन से दूध निकलने लगता है। माताएं अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने लगती हैं। तो बलराम जी देखते हैं, बलराम जी बोले कहा इतना ज्यादा प्रेम भाव बढ़ गए हम लोग के वृंदावन में, जिसके देखो अपन बच्चा के लिए, अपन बच्चा, गाय के भी अपन बच्चा सब लिए। तो बलराम जी बोले ये सब क्या हो रहा है। बलराम जी पहले नहीं जान पाए, फिर बलराम जी देखे और कृष्ण क्या किए, कृष्ण गए नंद महाराज के लगे। तो नंद महाराज को बताया, बोले पिताजी, बोले ये जो साल है ये बहुत मंगलमय साल है। बोले इस साल में अगर सब लड़का लड़की लोग के शादी कराए दियो तो बोले ये लोग बहुत सुखी रहेंगे। तो नंद महाराज बात गए, मान गए कृष्ण के बात। तो वृंदावन में सब लड़का लड़की लोग की शादी हुई। तो यहां ये सब हो ही गए। ब्रह्मा जी आइस तो देखे यहां तो ये सब हो ही गए और देखे सब कृष्ण है। ब्रह्मा जी अपन गुफा में जाके देखे लड़कन वहां है और लड़कन यहां भी है। तो ब्रह्मा जी के फिर ज्ञात हुआ, देखा, दर्शन किया कि ये तो सब कृष्ण है, ये तो सब कृष्ण। तो आचार्य जन समझाते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण पराय स्त्रियों के साथ में लीला करते थे। ये ब्रह्म विवाह लीला के अंदर में वो 1 साल में कृष्ण ने सभी से विवाह कर लिया था। तो कृष्ण जब रास भी करते हैं कोई गलत कार्य नहीं करते हैं।
कृष्ण जब वृंदावन में माखन चुराते हैं, कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? माखन चोर की जय। हम लोग कोई चोरी करे तब कोई जय जयकार करी? हम लोग को तो पकड़ के चाबुक लगी। भगवान क्यों माखन चुराते थे वृंदावन में? क्योंकि एक दिन कृष्ण को सब गैया लोग बोली कि जब तुम दूध नहीं पियोगे हमारा तो हम दूध देना बंद कर देंगी। तो कृष्ण बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकता है। ब्रज के भक्त लोग हैं जो ये सब गौ रक्षा से ही जीवन इनका चलता है, ये सब गौ पालन से ही इनका जीवन चलता है। तो कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, मैं इतना ढेर दूध नहीं पीऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, तो मैं मक्खन चुरा के एसेंस जो है मैं खा लूंगा। मक्खन कहा है? तो जब कृष्ण चाहते, जब कृष्ण तो गैया लोग बोले कि अच्छा ठीक है, जब तुम मक्खन खाओगे तब हम लोग दूध देती रहेंगी। यही बात श्रीमद् भागवतम के मेरे ख्याल से 8वां स्कंद में पृथु महाराज की कथा है। 8वां स्कंद में पृथु महाराज के कथा में बताया गया है कि जैसे कलयुग लगा, तो कलयुग के लगने पर, सतयुग के समय था, तो एक समय ऐसा हुआ कि सतयुग में ही धरती जो है वो उपज कम कर दिया। तो पृथु महाराज भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने धनुष बाण उठाया पृथ्वी को दंडित करने के लिए कि क्यों उपज कम कर रही हो, क्योंकि प्रजा के पास इनफ भोजन नहीं है। तो कांपती कांपती पृथ्वी माता प्रकट हुई और पृथु महाराज से बोली, भगवान विष्णु से बोली कि प्रभु मैं उपज इसलिए कम कर दी हूं क्योंकि मेरा उपज चोरी होता है। तो पृथु महाराज बोले कैसे चोरी होता है? बोले लोग धरती से उपज निकालते हैं लेकिन भगवान को भोग नहीं धराते हैं, ये तो चोरी है। इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं, शायद जवान लड़कन नहीं जानता हुई, आप लोग खेती बाड़ी नहीं करा है, हम लोग भी खेती बाड़ी करा है, हम लोग भी देखा, हम लोग के आजा आजी लोग पहला धान कटे, पहला बीन तुड़ाए, कोई भी चीज़ रहे पहला उसके ले जाए के गांव में पंडित के दान करा जाए। पहला धान कटे तो कोई नहीं सको धान दावेला टाइम या खेत में जाए के एक दाना मुंह में रखे, पहले धान दाए के खीर बनाए के उसके अर्पण करा जाए। आप लोग के पता है कि नहीं? जो बुजुर्ग लोग हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग भोजन भगवान को अर्पण नहीं करते हैं वो चोर है। आपके पास ये भगवत गीता होगा, जो छोटी वाली भगवत गीता आती है, आप लोग दान करते हो, उसमें जाके देखना 3रा अध्याय का 13वां श्लोक। बोले जो लोग बिना भगवान को अर्पण करे खाते हैं वे लोग चोर हैं। ये ग्रंथ में लिखा बात है। तभी हम लोग सब खाना चढ़ा के हम लोग के खाए के पड़े, भगवान की बात सुने के पड़े। भगवान की बात नहीं सुनिए तो नरक भोगे के पड़ी। हम तो नहीं मांगे नरक जाए हैं। यमदूत लोग के जो छापा देखा है सब है, चॉपस्टिक से हम लोग को फ्राई करके खाई। हम तो नहीं मांगता फ्राई हुए हैं। तो कहे के मतलब है कि तबे भगवान ये सब लीला के प्रकट करिस। हर एक चीज़ के पीछे एक कारण है। ऐसे नहीं कि भगवान केवल माखन चुराए है या भगवान गोपी लोग के संगे रास रचाए है, और भगवान अपन भक्त लोग के रक्षा करे हैं। और यही रकम एक टाइम ये भगवान गिरिराज गोवर्धन जी का लीला है, कृष्ण का लीला है कि एक बार उन्होंने देखा ब्रज में लोग क्या करें, इंद्र के पूजा की तैयारी हुए। तो कृष्ण नंद महाराज से पूछे, बोले क्या करे हम लोग ये करता है? तो बोले देखो बेटा, बोले अगर इंद्र के पूजा नहीं करेगा हम लोग तो पानी नहीं बरसी, पानी नहीं बरसी तो घास नहीं हुई, घास नहीं रही तो गैया के चरे के चारा नहीं रही, चारा नहीं गैया चरी तो दूध नहीं हुई, और दूध नहीं हुई तो मक्खन, दही और मक्खन नहीं हुई, दही और मक्खन नहीं हुई तो हम लोग के जीवन कैसे चली, हम लोग कंस के कैसे टैक्स भरेगा, और हम लोग अपन यही हम लोग के व्यापार है, कृषि गौ रक्षा नाम। तो भगवान कृष्ण बोले जरूरी है करे के? बोले हाँ। बोले इंद्र पानी नहीं बरसाई। तो कृष्ण बोले समुद्र में के इंद्र के पूजा करे? समुद्र में तो पानी काम है नहीं। बोले वहां फिर भी पानी बरसे। तो नंदा महाराज बोले अच्छा राइट बात बोले इस लड़का। बोले देखो
बोले जो हम लोग इस के बयान सवेरे सूरज नहीं निकली, सूरज हम लोग के पूजा से नहीं निकले हैं, वो भगवान के डर से निकले हैं। काहे कि भगवान उसके बताई से, उसके सेवा है कि रोज सुबह उदय होना, जिसमें कि जीव जंतु के सूर्य के किरण मिले, उन लोगों के जीवन ऐसे चले। रात के चंद्रमा निकले, चंद्रमा बड़ा होए चंद्रमा छोटा होए, बोले कृष्ण के भय से होए है, क्योंकि कृष्ण बताई से चंद्र के रात में निकलना, तब तो अनाज पकी, तब तो हमारे सब जीव लोगन के खाना रही खाएंगे। तो कृष्ण बोले नंद महाराज से, बोले हम लोग के तो पूजा करना चाहिए गोवर्धन के। काहे कि गोवर्धन पे हम लोग के गैया लोग जाए के चरे हैं। अब देखो कृष्ण के संकेत किधर है, कृष्ण ले जाए है सब ब्रजवासी लोग के गोवर्धन की ओर। तो नंद महाराज और ब्रजवासी लोग बोले अच्छा, बोले गोवर्धन की पूजा दूसरा टाइम कर दियो, अभी हम लोग इंद्र के कर दे। कृष्ण बोले नहीं 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 नहीं, यही सामग्री से हम लोग गोवर्धन के पूजा करो। तो फिर सबको इन मान गए, कृष्ण इतना स्वीट है तो सबको इन मान गए। तो गोवर्धन की पूजा हुआ, तो इंद्र के लगे समाचार पहुंचा, बोले कि कृष्ण तुम्हारा पूजा रुकाए के और गोवर्धन के पूजा करा दे। इंद्र क्रोधित हो गए, इंद्र पानी बरसाए लगा संवर तक। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, कहीं पानी नहीं बरसे तो आदमी बोले इंद्र के पूजा करो तो पानी बरसी, इंद्र के गुस्वाओ तब पानी बरसी। पानी नहीं बरसे, कृष्ण के पूजा करो, इंद्र गुस्सा जी मार पनिये पानी बरसाए दे। तो मार पानी पानी ब्रज में बरसाए दे, ब्रज सब फ्लड हो गए। अब सब भक्त लोग कृष्ण बोले तुम ही बता रहा, अब तुम ही बचाओ हम लोग के। तो कृष्ण बोले नहीं वरी करो, हमारा प्रॉमिस है कि हम ऑलवेज भक्त लोग के रक्षा करेगा। तो कृष्ण जाके गोवर्धन पर्वत उठाइस और बोले सब लोग इसके नीचे आ जाओ। 7 दिन 7 रात सब गोवर्धन के नीचे, सब भक्त लोग संगे रहा, सब भक्त लोग सत्संग में रहा। प्रथम भक्ति संतन का संग, ऑल द डिवोटीज वर टुगेदर। और ये कृष्ण को सबसे बड़ा आनंद देता है जब हम लोग सब भक्त लोग साथ में रहते हैं। जब कोई इधर भक्ता है, उधर भक्ता है, यहाँ जाता है, इट डजंट प्लीज कृष्ण, इट डजंट प्लीज कृष्ण। तबे से जब ब्रह्मा जी लड़कन के चुराए ले गिरा, तो कृष्ण ब्रह्मा जी के दंडित करिस, इंद्र के ऊपर नहीं गुस्सा। बोले इंद्र के बोले लेकिन एक अच्छा काम करा, तुम इतना पानी बरसाया, हम सब कोई इवैक्यूएशन सेंटर में आएंगे, सब गोवर्धन के नीचे आएंगे, हम लोग 7 दिन 7 रात सबको इन संगेरा। तो इंद्र बोले भगवान हमें माफ कर दो, तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम परम पुरुषोत्तम कृष्ण है, बाल रूप में हम तुम्हें चीन नहीं पाया। तो कृष्ण उसके माफ कर दिस। तो और जब भगवान गोवर्धन उठाइस, तो भगवान अपने गोवर्धन के रूप ले लिस। गोवर्धन कृष्ण से अलग नहीं है। और ये गोवर्धन त्रेता युग में कौन था? त्रेता युग में हनुमान जी ये पर्वत को लेकर जा रहे थे लंका के पुल बांधने के लिए। तो जैसे पुल बंध गया, राम भगवान बोला कि जो लोग जहां जहां से जुंची लेके आता है वहीं वहीं रख दो, क्योंकि पुल बन गया है। उसी समय हनुमान जी वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे और हनुमान जी ने गोवर्धन वहीं रख दिया। तो गोवर्धन रख दिया, गोवर्धन रोने लगा, बोले मैं राम के सेवा में नहीं आ पाया। तो राम जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, मेरी सेवा केवल तुम नहीं करोगे, तुम मेरे सब लीलाओं का स्थली रहोगे। गोवर्धन में भगवान सब लीला करते हैं, गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, कितने दानवों को मारते हैं। हर एक दिन भगवान गोवर्धन जाते हैं गैया चराने के लिए। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। भगवान युग युग के सब प्रॉमिस बटोर के लाके केवल कृष्ण रूप में भगवान सब कुछ पूरा कर देते हैं। इसीलिए आखिरी बात फिर समाप्त कर देते हैं। आखिरी बात, इसीलिए ग्रंथ में बताया गया है, दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं तो विराट रूप में क्या दिखता है? कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण के अनेक अवतार दिखते हैं, राम, नारायण, नरसिंह, वामन। केवल ये नहीं दिखते हैं, समस्त देवी देवता दिखते हैं। समस्त देवी देवता केवल नहीं दिखते हैं, वो मृत्यु दिखता है। सब लोग, सब जीव भगवान के मुख में जा रहे हैं।
विराट रूप मतलब पूरा सृष्टि दिखता है, पूरा सृष्टि दिखता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बोले जैसे फिजी में सबसे बड़ा नोट कौन सी है? $100। $100 के ले जाए के आप चेंज कराओ, $100 में से $50 निकली कि नहीं? $20, $10, $5, $2 संगमोली है, 50 सेंट, 20 सेंट सब निकली, सब उसके भीतर है, येलो नोट के भीतर है, खाली इसके छुट्टा कराओ तब दिखाई। अगर आप $20 लेके जाओ चेंज कराओ, उसमें से $10 निकली, $5 निकली, $50 निकली? नहीं निकली ना, $100 निकली। विराट रूप केवल कृष्ण दिखाई से अर्जुन के, माता जशोदा के, राम दिखाई से कौशल्या के, और काकभूषुंडी ना दिखाए भगवान के मुख में जाए हैं। तो राम और कृष्ण ही केवल परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए तो विराट रूप दिखाया है। तबे से बताया गया है कि अगर समस्त सृष्टि का पूजा करना चाहो तो राम और कृष्ण का पूजा करो, सब कुछ के पूजा हो। अगर कोई बोले कि हरे कृष्णा वाले देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, आप लोग गलत है। आप तो केवल 2-4 का करते हो, हम लोग कृष्ण के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता का पूजा करते हैं। अगर पेड़ में पानी देना हो, पत्ती पत्ती, फूल फूल, फल फल पे पानी दोगे कि जड़ पे पानी दोगे? जड़ पे, जड़ पे। हम लोग सब भोजन करते हैं, अभी आप महाप्रसाद पाएंगे। अगर मुख बोले या हाथ बोले मैं क्यों भोजन उठा के मुख में दो, मुख में से पेट में जाता है, मेरा क्या फायदा है इसका? तो बोले आज हम लोग प्लाव उठाए के हाथ में लगा लो। हाथ में ताकत आई जी? हाथ में ताकत आई? हाथ के काम है प्लाव उठाए के मुंह में, दांत के काम है उसके चबाओ, उसके लीलो, पेट में जाई, पेट में से ताकत फिर हाथ में आई। जितना देवी देवता है, जितना सृष्टि है, वो सब के ताकत के सोर्स है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान श्री कृष्ण ही सभी अवतार, सारा जगत, सब चीज के स्रोत रहे। जन्माष्टमी में ये हम लोग ग्रंथों से सीख सकते हैं, और जब कोई भी चीज़ सीखा जाता है उसके आधार पे जीवन फिर निर्वाह किया जाता है। इसीलिए परम पूज्य जो है, हमने उस दिन श्लोक पढ़ा था ना, निम्न गानम यथा गंगा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, देवा नाम अच्युतो यथा। देवा नाम अच्युतो यथा। पूजनीय लोगों में परम पूजनीय कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि। एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है जिसको महामंत्र बताया गया है, जो सभी मंत्रों का राजा है। कौन मंत्र है? सा एव मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति।
वो मंत्र जिसमें हरि, कृष्ण और राम का नाम है। कौन है वो मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम आपको, हमारे गुरु महाराज एक बार फिजी आए थे, तो फिजी में जब वो मेरे ख्याल से FIT में प्रवचन कर रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा, आप सभी लोगों को मैं चुनौती देता हूं, मैं आपको $10,000 इनाम दूंगा, आप 6 महीने तक ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो, और आपके जीवन अगर नहीं बदल जाए तो बोला कि मैं आपको $10,000 इनाम दे दूंगा। दूसरा सब एक मंत्र हम लोग जप करते हैं, दूसरा सब एक मंत्र आप जप करो, कलयुग में निष्फलमता, उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए तो अनेक मंत्र जप करते हुए लोग अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। क्या प्रोग्रेस करना है? कलिमल हरण विषय रस फीकी, आरती श्री रामायण जी की। अगर हम लोग रामायण पढ़ते हैं, आरती मतलब नहीं दिया घुमाना, रति मतलब लगन लग जाना, लगन लग जाना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। बोले कर से कर्म करो विधि नाना, अपने काम अपन करो, जिसके लड़कन बच्चन पाले के, नौकरी करे के, बिजनेस करे, खेती बाड़ी करे के, कर से कर्म करो विधि नाना, अपन कर्तव्य करो। मन राखो जहां कृपा निधाना, अपन मन में हरदम सोचते रहो। लड़कन बच्चन के भी पालता है तो जानो ये लोग भगवान के अंश है, भगवान हमारे भाग्य में ये लोग के दीस है, हम लोग के लोग के पालन पोषण करके भगवत प्राप्ति कराए के। लड़कन भी माई बाप के सेवा करो तो हमारे कर्म अनुसार ये माता पिता मिला है, जिसके प्रभाव से, उलों के पुण्य से आज हम लोग के भक्ति प्राप्त है। हम लोग के इलों के भी भक्ति में संलग्न करके, ऋण चुका के इलों के भी भगवान के धाम पहुंचाए के है। अगर हम लोग कोई के नौकरी करता है तो कर्म अनुसार, कोई हम लोग के विश्वास करी से ट्रस्ट करे है तो हम लोग कोई के काम करता है वो भी ईमानदारी से करो, भगवान में मन रखे रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा निधान, जहां पे कृपा निधान में मन रखे रहो। जब मन में कृपा निधान रखियो, आदमी क्या बोले? आदमी बोले मन चंगा कटोर में गंगा। आदमी बोले कुछ दिखाए काम नहीं, मन चंगा है बस। तुलसीदास जी वही बोले, जब मन चंगा रही, मन जब भगवान में लगा रही तो मन से सकल वासना भागी। मन से सकल वासना भाग जाई। अरे थोड़ा से जीभ के स्वाद है, थोड़ा से मैला पानी है, इसमें का फंसा है? केवल राम चरण लव लागी, केवल राम चरण लव लागी। हनुमान जी कभी देखा है राम के गुण करे है? बोले गटे सुखाए लगा है? राम ऐसे नहीं करे, हनुमान जी ऐसे नहीं करे, बोले केवल राम चरण लव लागी। आपो आप हम लोग के फिर भगवान में लव लगते चल दे। जब लव लग जाई तो हम लोग के हालत कैसे हुई? मेरे तो दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। बस गिरधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान के अनन्य भक्त, भगवत धाम, तुलसी जी, गोवर्धन जी, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, इसी को कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बस हरि कथा, भगवान का कीर्तन, भक्त सब यही करते हैं। आप ज़्यादा लोग सोचते होंगे कि भक्त लोग अपने जीवन में मनोरंजन क्या करते हैं। हमारे भक्त ना विलसिक जाते हैं, ना इधर उधर चुचुआते हैं, ये सब बट लेकिन ये सब आनंद में है। आपके ऐसे लगे कोई भक्त के मुंह ऐसे करिया है जैसे बंदर माफी थे? बंदर नहीं बोलना चाहिए, बंदर, वानर तो हनुमान जी भी है, लेकिन पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि राममय है,
क्योंकि राममय है। जो राममय हो जाएगा वो पूजनीय हो जाएगा। तो गोवर्धन जी कृष्णमय है, वो स्वयं कृष्ण है, हरिदास वार्या। तो बताया गया है जो गोवर्धन जी का परिक्रमा कर लेता है उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले थे, अगर कोई गोवर्धन जाके गोवर्धन का परिक्रमा ना कर पाए, गोवर्धन परिक्रमा करने में 5, 6, 7 घंटा लगता है, दिन भर के काम है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ऐसा एक गोवर्धन शिला दिया। ये गोवर्धन शिला जो है ये गोवर्धन पर्वत का है, ये कोई ऐसे ही नहीं जाके ला सकता है। जब कोई परिक्रमा पे जाए तो अगर कोई ब्रजवासी अपने हाथों से दे तभी आप लेके आ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो एक बार मैं गया था परिक्रमा पे, तो एक ब्रजवासी के साथ में परिक्रमा कर रहा था, 2019 में मैं गया था। तो एक ब्रजवासी ने मुझे ये गोवर्धन शिला दिया। ऐसे बताया गया है जितना गोवर्धन शिला का वजन होता है उतना सोना दान करना पड़ता है गोवर्धन में। अगर कोई अपने से लेके आए तो ये करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई ब्रजवासी दे तो हम लोग ब्रज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का इतना बड़ा भाग्य है कि आज आप लोग इस साल आपका जो जन्माष्टमी है, विशेष करके यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग रियली में, मैं सोच रहा था यू आर रियली रियली फॉर्चुनेट। मैं बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये गोवर्धन जी को यहाँ पर लेके आएंगे। ये तो कल शाम कथा के अंतर्गत मेरे मुख से निकल गया कि कल हम लोग, मेरा प्लान नहीं था ये भगवान के लीला और ये सब में जाने का, लेकिन ये आप लोगों का पुण्य है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। आप लोग सब महात्मा, आप लोग के कोई जन्म के पुण्य फलित हो गया है कि आप लोग गोवर्धन नहीं गए लेकिन गोवर्धन स्वयं यहाँ आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोला गिरिराज महाराज की। तो चैतन्य महाप्रभु बोला सनातन गोस्वामी को जब शिला दिया तो बोला जब तुम 7 बार इसका परिक्रमा कर लोगे तो तुम्हारा पूरा गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। तो आज हम लोग आपको ये अवसर देंगे, आप लोग का पुण्य उदय हुआ है और आप गोवर्धन से कुछ भी मांग सकते हो, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति मानता है, लेकिन आपका जो भी दुख है कुछ भी है आप भगवान से मांगे, गिरिराज जी पूरा करते हैं। आप लोग कभी यूट्यूब में जाके देखना गोवर्धन परिक्रमा, लोग जाते हैं, कोई दंडवत परिक्रमा करता है, कोई दूध गिराते हुए परिक्रमा करता है। कितने लोग होते हैं ऐसे जाते जिनको संतान प्राप्त नहीं होता है, वे लोग परिक्रमा पे जाते हैं, उनको संतान प्राप्ति हो जाता है। किनको आप गोवर्धन में जाओ, लाखों के संख्या में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी परिपूर्ण कृष्ण हैं और वो परिपूर्ण भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आप सभी लोगों का आज भाग्य उदय है, आप सब लोग इसमें भाग लीजिए। आई थिंक यू नो इफ यू हैव अ स्टूल और समथिंग यू कैन पुट द गिरिराज शिला वेयर मासिंगा इज सिटिंग। गिरिराज जी के जगह से हटना पड़ेगा आपको। और फिर जब भगवान की आरती हो रही उसी समय सब लोग एक के संगे नहीं, पारी पारा, सो दैट वी डोंट स्टम्बल ऑन इट, और ना ही आप लोग एक दूसरे को धक्का धुक्की करें। सब लोग को मौका मिलेगा, सब लोग ऐसे 3 या 7 बार ऐसे परिक्रमा करके प्रणाम करके और फिर आरती में भाग लेकर और फिर उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है? हाँ, या तो आप तुलसी महारानी को यहाँ पर रख दो और गिरिराज को केवल ये ले जाओ, पूरा कंटेनर। ठीक है? और यहाँ तुलसी यहाँ रख दो। हाँ। तो इस प्रकार से किसी को कोई प्रश्न है? कल आखिरी दिन है, कल जन्माष्टमी, कृष्ण का प्राकट्य हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि प्रवचन छोटा रखे, जिसमें कि आप सभी लोग, हम लोग पहले कीर्तन से शुरू करेंगे, कीर्तन के बाद में भगवान बाल मुकुंद जी का अभिषेक करेंगे, दूध दही घी मध और चीनी पानी से और फ्रूट जूसेस से, ये हम लोग करेंगे। तो कल आप सभी लोग अपने अपने घर से कुछ दूध फल ये सब लाइए, जिसमें आप भगवान का अभिषेक कर सकें। सबको मौका मिलेगा। No, that's okay. Don't put that. Yeah. Otherwise it will slip. Yeah. Just leave it there. हाँ, उसमें slip हो जाएगा। तो और भगवान को चढ़ाने के लिए सभी लोगों को कुछ न कुछ फल आदि लेकर आना चाहिए कल के उत्सव के लिए। और तो इस प्रकार से हम लोग भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर जब तक भगवान का श्रृंगार किया जाएगा तो हम लोग छोटा से कथा करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हम लोग कुछ आइटम वगैरह करें, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। फिर उसके बाद में हम लोग
भगवान का झूलन करेंगे और आरती करेंगे और फिर महाप्रसाद पाएंगे। ठीक है, कल का ये प्रोग्राम है। तो कल हो सके सभी लोग प्लीज़, विशेष करके जो जन्माष्टमी हम लोग कल फिनिश कर रहे हैं, जो हो सके तो फास्टिंग करना चाहिए। केवल अन्न से फास्टिंग करना चाहिए। आप दूध फल पा सकते हैं, दालो कसेरा बॉईल करके खा सकते हैं, आलू बॉईल करके खा सकते हैं। तो केवल अन्न नहीं खाइए, रोटी नहीं, भात नहीं, दाल नहीं, हलवा नहीं, खीर नहीं, जब तक यहाँ पे अभिषेक नहीं हो जाए। तो आप लोग को सबको ऐसे करना चाहिए। और फिर सबको अभिषेक में हो सके सब लोग अभिषेक के समय तक यहाँ रहे, क्योंकि एक अवसर मिलता है कि हम भगवान को अपने हाथों से स्नान करा सकें। भगवान को जब दूध दही घी पंचामृत का जब अभिषेक किया जाता है तो वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कि अपने हृदय को हम भगवान को समर्पित करें, अपना प्रेम भगवान को दे रहे हैं। तो इसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। ठीक है, ये कल का प्रोग्राम रहेगा। तो अब हम लोग भगवान की आरती करते हैं और जैसे हमने कहा सब लोग बारी बारी से परिक्रमा करें। प्लीज़ धक्का मत मारिए, गिरिराज जी को गिराइएगा मत, वेरी स्पेशल। और जो भी आपको इच्छा है, प्रार्थना है, जो भगवान से मांगना चाहो आप परिक्रमा करके भगवान से मांग लेना, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, निताई गो प्रेमानंदे। आज हम लोग भगवान के लीला का एक भजन गाएंगे। तो बेसिकली बहुत सरल है, आपको केवल एक ही लाइन रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। और दूसरा है जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव
Hare Krishna
जय